दिस इज डेविड हान और ये अपने घर पे एक न्यूक्लियर वेपन बना लेते हैं। This is a fascinating story of David Hahn, who built a nuclear weapon at his home at the age of 17. For making a nuclear weapon, David fooled the US scientists, engineers, law authorities, and even the US government. डेविड के बनाए गए वो न्यूक्लियर वेपन से ऑलमोस्ट 40,000 लोग मारे जा सकते थे, but not by an explosion, but a silent killer, the radioactive radiation. These stories are based on this book. For more information, check out the link in the description. जब डेविड 10 साल का था तो उसके ग्रैंडफादर उसे एक बुक गिफ्ट करते हैं, द गोल्डन बुक ऑफ केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। ये एक नॉर्मल केमिस्ट्री का बुक बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज इस बुक के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, द लिस्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल दैट वर यूज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, सेकेंड, हाउ टू एक्सैक्ट द क्लोरीन टू मेक अ हार्मफुल बायोकेमिकल, एंड थर्ड, हाउ टू एक्सैक्ट द हाइड्रोजन टू मेक एन एक्सप्लोजिव, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब ये बुक 10 साल के छोटे बच्चे के हाथ में लग चुका था और इंटरेस्टिंगली ये बुक उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। इसके 3 साल बाद जब डेविड 14 ईयर्स का होता है, तब उसने एक ऐसा केमिकल बना दिया जो डायनामाइट प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है, एक नाइट्रोग्लिसरीन। बट ये तो बस एक शुरुआत था, डेविड किसी और फील्ड में जाने वाला था। एंड विद इन द सेम ईयर डेविड को उसके स्कूल की तरफ से एक बैच मिलता है न्यूक्लियर इंथुजियास्ट का। एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आके डेविड सोचता है उसे एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन बट जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन। Now, for a better understanding of this video, I just take you a few seconds to explain what a nuclear reaction really means. Because of this, you can easily able to understand this video. So, let's begin. एक न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हमें चाहिए दो चीज। नंबर 1 is a neutron, a subatomic particle, and second, the radioactive elements, basically uranium, plutonium, and thorium. Now in a reaction, a very high velocity of neutron hits the nucleus of a radioactive atom. Because of this, the whole atom becomes very unstable. As a result, the atom splits. Along with energy, plus 3 extra neutrons, and that 3 extra neutrons fuse other atoms, and this is something called chain reaction. Remember, the more the mass of radioactive element is contained, the more the energy it releases, in the form of massive heat and deadly radiations like alpha ray, beta ray, and gamma ray, and many more. This harmful ray able to penetrate into your skin, damage your DNA, and able to cause deadly conditions like cancer. Radiation hits the DNA, it damages it. Most of the time the damage is repaired, but often if there's enough radiation, this damage will persist. Sometimes it will lead to a disease like a cancer or a tumor or some other developmental problem. Okay, this is enough for the explanation. Let's move to our topic, David Hahn. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेविड के पास खूब सारा ऑब्सेशन था, बट दो इंपॉर्टेंट चीज नहीं थे, रिसोर्स एंड नॉलेज। बट एट द सेम टाइम डेविड के पास एक चीज का एडवांटेज था, हिज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। तो अपने इस नॉलेज एज अ बैरियर खत्म करने के लिए डेविड अपना प्रोफेशन चेंज कर लेते हैं। वो एक स्टूडेंट से एक फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर डेविड हान बन जाते हैं। अपनी इस फेक आइडेंटिटी का यूज़ करके वो एक लेटर लिखता है न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन यूएस के अंदर। वो उस लेटर के अंदर लिखता है कि आई एम फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर डेविड हान and I wanted to teach my students how a nuclear reaction really works so they can easily able to understand this whole process easily. Therefore, I need some depth information regarding this topic. Could you able to provide me that information? Few days later, he got the reply. Why not? And this is exactly how he solved this first problem, lack of knowledge. And now he had just one problem left to make a nuclear weapon, resources. And this was one of the toughest problem he had faced ever. Despite this, he solves the problem. He simply solve this problem by reading a lots of book and directly asking from the scientists. For example, उसे एक न्यूट्रॉन सोर्स चाहिए था,
और उसने अपने बुक में पढ़ा था कि अमरीशियम 241 इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर न्यूट्रॉन, बट बुक में मेंशन नहीं था कि इसका यूज़ कैसे करें। Therefore, he uses his scientist trick. वो साइंटिस्ट से कुछ ऐसा पूछता है, Scientist, do I able to use the Americium 241 in my theoretical experiment? And they say, absolutely. They explain the whole process how he could able to use Americium 241 in his experiment. और डेविड जानता था कि अमरीशियम 241 कहाँ मिलेगा, inside the smoke detectors. बट एक सिंगल स्मोक डिटेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम अमाउंट में अमरीशियम 241 पाया जाता है, ऑलमोस्ट लेस देन 0.3 माइक्रोग्राम्स। तो इसके कारण डेविड को एटलीस्ट 300 to 400 स्मोक डिटेक्टर्स चाहिए। बट द प्रॉब्लम्स वर नॉट गोइंग टू इन फॉर डेविड। वो 300 to 400 smoke detectors, David had to pay for this at least 3 to 4,000 US dollar, or in Indian currency, it's roughly around 3 to 4 lakh rupees. Now, ये प्रॉब्लम अब डेविड को सॉल्व करना था at any cost. So इस चीज़ के लिए डेविड अपना प्रोफेशन फिर से चेंज कर लेता है और फिर से फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर डेविड हान बन जाता है। पर फिर से डेविड एक लेटर लिखता है, लेकिन इस बार स्मोक डिटेक्टर मेकिंग फैक्ट्री में। इस बार डेविड कुछ इस तरीके से लिखता है कि आई एम अ फिजिक्स प्रोफेसर मिस्टर डेविड हान एंड आई हैव टू शो माई स्टूडेंट्स हाउ एन अमरीशियम 241 एक्चुअली लुक्स। और ये मैं जानता हूँ कि अमरीशियम 241 स्मोक डिटेक्टर्स के अंदर पाया जाता है। सो कुड यू प्लीज प्रोवाइड मी 300 to 400 स्मोक डिटेक्टर्स? इफ यू डू दिस देन यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन देयर एजुकेशन। एंड दे एग्री फॉर दिस। They have delivered 300 to 400 smoke detectors to his home at the cheapest price of $1 per smoke detectors. He made it. अब उसे पहला एलिमेंट मिल चुका था, बट न्यूट्रॉन सोर्स को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उसे एक और एलिमेंट चाहिए था, रेडियम। बट रेडियम इज एक्सपेंसिव, रेयर एंड हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट। इट मीन्स डैट डेविड को इस बार भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा टू फाइंड दिस एलिमेंट। But this time he was lucky. He knows that where to find this radioactive element inside the old antique watches. When he collects the enough antique watches, then he extracts all the radium from them. And now he have everything for an excellent neutron emitter, except beryllium. बिकॉज बिना बेरिलियम के ये जो कॉम्बिनेशन है अमरीशियम प्लस रेडियम का, वो रेडिएट कर रहा था एक अल्फा पार्टिकल, एक ऐसा हाई एनर्जी पार्टिकल जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इसी 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए एक एलिमेंट जिसका नाम है बेरिलियम। और इस एलिमेंट को डेविड अपने स्कूल से चोरी कर लेता है। इस एलिमेंट की वजह से डेविड एक परफेक्ट न्यूट्रॉन मीटर बना लेता है। इसके बाद डेविड चाहिए था एक रेडियो एक्टिव कोर, और ये बात डेविड जानता है कि उसे एक रेडियो एक्टिव कोर कहाँ मिलेगा। इनसाइड द ओल्ड कैंपिंग लैम्प्स, जो पहले के लैंटर्न्स होते थे, उनका फिलामेंट एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट थोरियम से मिलकर बना हुआ होता था, जो एयर से रिएक्ट करके थोरियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। इसके बाद वो मार्केट से बहुत सारा लैंटर्न खरीद के लाता है, उनके कोर को मेल्ट करता है और फॉर्म करता है एक प्योर थोरियम को। डेविड का रेडियो एक्टिव कोर अब ऑलमोस्ट रेडी था। डेविड इस मोल्टेन थोरियम को एक एल्युमिनियम फॉइल में रैप अप करता है और सभी चीज़ों को अरेंज करता है जो उसने बनाया था। वो न्यूट्रॉन सोर्स अमरीशियम और रेडियम को थोरियम के पास लेके आता है। अब यहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होगा न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब यहाँ से रेडियम और अमरीशियम में से अल्फा पार्टिकल एमिट्स होंगे। इसके बाद ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम से पास होंगे एंड देन ये अल्फा पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन्स के अंदर। इसके बाद ये न्यूट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से थोरियम के न्यूक्लियस से कोलाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे एक प्योर यूरेनियम 235, अ हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एंड ऑफिशियली डेविड एक न्यूक्लियर वेपन बना चुका है। ये छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्शन इतना ज़्यादा डेडली है, इसके वजह से ऑलमोस्ट पूरा एक शहर खत्म हो सकता है बिकॉज ऑफ हार्मफुल रेडिएशंस। और इस बात को डेविड बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है उसने क्या बना दिया है। तो इसके बाद डेविड पैनिक में आता है और सब चीज़ को डिसमेंटल करता है। वो न्यूट्रॉन इमिटिंग सोर्स रेडियम और अमरीशियम को एक बॉक्स में पैक करता है और अपने घर से दूर उसे फेंक देता है। और इसके बाद 31 अगस्त 1994 को यूरेनियम कोर को वो फेंकने जाता है अपने कार से करीबन रात के 2:04 पे। बट उसे पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है। जब पुलिस डेविड के बैक सीट चेक करते हैं तो डेविड बोलता है, बी केयरफुल सर, दिस इज़ हाईली रेडियो एक्टिव।
एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ ही कॉट बाय अथॉरिटीज। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है तब जाके पता लगा जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ हुए हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर उनको साफ़ करने का कॉस्ट करीबन $60,000 है और इंडियन करेंसी में ये अप्रॉक्स 50 लाख रुपए से भी ज़्यादा बनता है। डिस्पाइट दिस डेविड को कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाता है बिकॉज डेविड का एज अभी 18 से कम था। डेविड लॉ एनफोर्समेंट से तो बच गया बट डेविड को सोसाइटी से बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा। उसको सोसाइटी एज अ क्रिमिनल ट्रीट कर रही थी जिसकी वजह से डेविड डिप्रेशन में चला जाता है और ड्रग्स और अल्कोहल जैसे हार्मफुल चीज़ से एडिक्ट हो जाता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस एट द एज ऑफ 39 डेविड की मौत हो जाती है।